तो whatever income that you are getting, एक जार आपका हो जाता है आपके मंथली फिक्स एक्सपेंसेस में। एक मनी जार आप बनाते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट, एक मनी जार आप बनाते हैं लर्निंग के लिए। दिस इंटरटेनमेंट जार और प्ले जार, ये 10% स्पेसिफिकली मुझे महीने के आखिरी में खर्च करना ही करना है। जब आप इस तरीके का एक डिसिप्लिन अप्रोच कर लेते हैं तो योर लाइफ बिकम्स काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड। अब वो 10,000 में मैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदूं या मैं मूवी देखने जाऊं, पर योर माइंड इज ट्रेन्ड इन अ वे कि भाई ये 10,000 ही खर्चा हो रहा है। तो डिप का भी रूल इज 10%, 20%. When there is a market dip at 10%, you buy at some point. When the market is maybe another dip coming at around 20%, whichever stock that you have got, you buy another chunk. The Indian government has certain laws. Director can also draw a salary from the business, even if it is your own business, and make you as an employee of your own business. दुकानदार बनिया दुकानदार करता है, गल्ले में देखा, गल्ला खोला, अच्छा इतने पैसे हैं, चलो ऐसे हाथ डाला और जेब में डाला और जी चल दिए। कहीं पे भी कोई अकाउंटिंग नहीं बन रही। He has trained thousands of professionals for 20 years, and his life mantra is invest early and retire rich. My guest today is Kanhaiya Narang, also known as Kana the Life Coach. Kanhaiya, thank you so much for doing this. Really glad to have you here. Same here, same here. Pleasure joining you, Piyush, of this interactive podcast with your viewers. I believe there will be a lot of things that we are going to discuss today, which will add value to each and every listener who is at your channel and around. So, Kanhaiya, let me contextualize our viewers. Basically, they are people from age group of 26 to 34 years, right? Okay. Wannabe entrepreneurs or want to start something of their own, right? And trying to learn how it is done from people who have already done it, right? So they want to learn from you about wealth creation mindset, right? Because every person who has an aspiration to become an entrepreneur, वो यही सोचता है कि मुझे बहुत ढेर सारा पैसा कमाना है और अभी जो नौकरी में नहीं मिल रहा है वो सारी हसरतें मुझे अपनी पूरी करनी है, राइट? सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सेविंग माइंडसेट वर्सेस वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट, क्या डिफरेंस है? क्योंकि बचपन से हमें हमारे पेरेंट्स, दादा दादी ये सब सिखाते हैं कि आप जो भी अर्न करोगे उसमें से एक पार्ट जो है, 1 part you keep it as your saving, 1 part you keep it in your family expenses, 1 part, this is a traditional, like, you know, kind of divide it into 3 or 4 parts and keep 1 part as saving. Yeah. तो समझिए मैं 1 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, राइट? अब उसमें से मेरे को बोला गया कि 25,000 आप अलग से सेविंग के लिए निकाल के रख दो। साल भर में मेरी सेविंग हुई 3 लाख रुपए, राइट? ये हो गया मेरा सेविंग माइंडसेट। वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट क्या है? वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट ये है जहां पे आप सेविंग की नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, विच इज इन्वेस्टमेंट। Investments are always risky. We always say that investment in market is subject to market risk. There is a good disclaimer comes always. But the thing is that if somebody wants to be rich, somebody wants to create wealth, that will not come with saving. And this is not any logic or opinion. These are simple facts stating the same, right? What are the facts? Let us check out our rate of interest in any of a saving bank account. If you wanted to go for a next level, you can check the interest rate of any fixed deposit or recurring deposit accounts. However, when you check the history of the market, where I say people invest, right? People invest in real estate, people invest in gold, people invest in stocks, mutual funds, ETFs. If you check the history, on an average, you will see that there is a considerable difference between the saving bank interest rate and the growth that you get in the market, right? If I quantify it in terms of numbers, it is around 6 to 8% of a average return in a fixed deposit or recurring deposit. On the higher side, I'm talking about 8%. However, if you talk about the market, it is around 15 to 18%. So imagine I and you both start our journey together. You do investments and I do saving. After 10 years down the line, Piyush, who do you think will be having more money with the same investments, same amount of, like what you said,
25,000 probably, or 20,000, keeping it aside and doing something with that money. Yeah, definitely the guy who is doing investment is going to earn more, but then there is a lot of risk Yes. also involved with it, right? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, Hmm. स्टॉक मार्केट भी है, म्यूचुअल फंड भी है, गोल्ड भी है, ईटीएफ भी है, फिर अभी क्रिप्टो भी आ गया, Hmm. एंड देन देयर इज रियल एस्टेट आल्सो, राइट? Correct. And then sometimes situations are not, in your hand. For example, आपने बहुत सारा इन्वेस्ट किया, बाद में कोविड आ गया, Hmm. right? All the businesses went down, stock market crashed, Hmm. right? एंड अभी रिसेंटली का आप देख लो, आपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में बहुत सारा इन्वेस्ट किया, यूएस हैड सम प्लान्स, दे यूएस एंड इजराइल हैड अ वॉर ऑन ईरान, Hmm. और उसका हमसे तो कोई लेना देना भी नहीं है, तो भी हमारा तो भाई वो उसका वैल्यू कम हो गया, Hmm. राइट? ऐसे ख्याल दिमाग में आते हैं, बहुत तो अच्छे ख्याल हैं और बहुत सही ख्याल. These are actually the thought process of every person who does not know the investment as a whole in terms of long term. So let me tell you, saving mindset is a short term and wealth mindset is definitely long term. Any entrepreneur you see, right, he has not been rich overnight. You talk about anybody. You talk about big brands like McDonald's or maybe Google or Apple even, and you even talk about certain brands which are there existing in our country, maybe Uber, Ola, Oyo, all these, right? Even the companies like you talk about IT, Wipro, TCS, Infosys. If you go to their base, they started very slow, and today they are giants, not in 1 or 2 years, but over a period of year. So now let me give you the synopsis related to how the market behaves. 1986, Sensex started. Any idea on what point the Sensex started? I have no idea. Around 100, right? 100 100 point points. basis, right? And today we are here in 2026, right? Around 40 years, right? And in this 40 years, with lots of ups and downs, still the Sensex is standing nearly 73,000. So from 100 point basis to 73,000, right? Imagine the kind of a wealth you could have made if you have invested 1 lakh rupees in 1986, and today what has it has become, right? So 100 rupees, like kind of a general calculation, कि 100 rupees 73,000 हो चुके हैं आपके. So 1 lakh कितना हो जाएगा, right? That's Oh, big wealth. And then when you mention risk, let us see, इस between में क्या आया? IT बबल आया, जी कुछ वर्ल्ड के बड़े बड़े वॉर हो गए, जी रशिया यूक्रेन हो गया, डीमोनेटाइजेशन आ गया, कोविड आ गया. If you bring the historical graph of Sensex, you will see that after every dip, when the market rose, it rose at a higher rate than it went down, right? And the recovery was also faster. पहले रिकवरी आती थी 4 महीने में, 5 महीने में. अभी रिकवरी आती है 2 महीने में, 1 महीने में, right? So the recovery is also faster. Yes, obviously the uncertainties bring the emotional aspect of a person, right? And to sum it up for your young generation, I would say कि बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पीयूष, कि अगर आपको कोई भी गुड, कोई भी माल जिसे कहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा हो तब आप खरीदना चाहेंगे या महंगा मिल रहा हो तब खरीदना चाहेंगे? ऑब्वियसली सस्ता मिल रहा होगा तभी खरीदेंगे. तो जब स्टॉक सस्ते मिलते हैं तो हम क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि उस समय हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि अभी ये मार्केट क्रैश हो रहा है, हाँ. हो सकता है और क्रैश होगा, और क्रैश होगा, और क्रैश होगा, हमें नहीं पता, राइट? आज मैं जो स्टॉक में 100 रुपए का खरीदूंगा, हो सकता है कल जाके 50 का हो जाए, Correct. उसके 3 दिन बाद जाके 25 का हो जाए, फिर मैं क्या करूंगा, हाँ. राइट? दिस इज जस्ट अ जनरल माइंडसेट, राइट? बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन मीन्स, राइट? तो इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, ये भी शायद बहुत सारे लोगों को काम आएगा, कि जब हम डिप की बात भी करते हैं और आप चाहते हैं कि हम एवरी डिप पे परचेज करें, तो डिप का भी रूल इज 10%, 20%, राइट? अच्छा. When there is a market dip at 10%, you buy at some point. When the market is maybe another dip coming at around 20%, whichever stock that you have got,
you buy another chunk. And always we say that a wealth mindset is somebody who is not thinking about only one aspect of creating wealth. The person is thinking about multiple aspects, which is known as diversification, right? अच्छा, So अब आप अभी डाइवर्सिफिकेशन इज अ इंटरेस्टिंग थिंग, आई एम क्यूरियस टू नो। इसको समझाइए। मतलब मेरे पास अभी 25,000 है, ठीक है, हर महीने जो मैं सेव कर रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या डाइवर्सिफाई करूँ अब और कैसे डाइवर्सिफाई? 25,000 आपके पास में है, अगर आप सारा का सारा ही इसको मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, हाँ, जी। मेरी बात मान के कि आपने सुना कि कान्हा दा लाइफ कोच कह रहे हैं, निवेश मित्र कान्हा कह रहे हैं कि जी चलो 25,000 इन्वेस्ट कर दो, कर देते हैं। राइट। बट हुआ क्या, अगर कल को ये वॉर थोड़ा भी एक्सटेंड हो गया या कोई बहुत बैड न्यूज आ गई, एनी ग्लोबल बैड न्यूज, बिकॉज टुडे वी ऑल नो कि किसी दिन सुबह कोई भी एक बढ़िया प्रेसिडेंट खड़ा होता है और कुछ भी बोल देता है और अगले दिन मार्केट में तराही मच जाती है। जी। सो आपको लगेगा कि मैंने तो अभी 25,000 इन्वेस्ट ही किया था और ये तो मुझे 19,000 दिखा रहा है, 25,000 19,000 हो गया यार, ये तो बहुत गड़बड़ सौदा हो गया। तो जी। पीयूष, एक जनरल पर्सन की बात करें, क्या करेगा वो पर्सन? वो क्या बोलेगा, बुक द लॉस, मूव आउट। अभी 25 का 19 हो गया, अब मैं 19 से और नीचे नहीं जाऊंगा भाई, इसको बेच दो, निकलो यहाँ से बाहर, क्योंकि मेरा नहीं तो 19 भी जीरो हो जाएगा। करेक्ट। अब वो 19 का बुक लॉस करके बाहर हो गया, यानी 6,000 का उसने लॉस लिया। अब आप सोचो अगले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्या वो इस सदमे से उबर पाएगा? बिल्कुल नहीं। नहीं। वो जब भी उसको कोई बात करेगा इन्वेस्टमेंट की, वो कहेगा मैंने लगाया था यार, पैसा नुकसान हुआ, डूब अभी गया मेरा पैसा। अब दोबारा नहीं भाई। हाँ, हाँ, थैंक यू। हाँ, राइट, सो दैट्स एब्सोल्युटली। द डाइवर्सिफिकेशन कम्स। सो 25,000 पूरा पूरा आप सीधे ही स्टॉक मार्केट में नहीं लगाएंगे। 25,000 का अगर मैं एक सिंपल मैथ्स लेके चलूं तो चलिए इसको 5 भाग में डिवाइड कर देते हैं। So one जी। part will go to the stocks, direct equity. One part may go to mutual funds, right? Then again, there will be a diversifications. There could also be a good trend that you must have observed in the precious metal, gold, silver. So 5,000, let's say, went to gold and silver. गोल्ड Do you एंड know सिल्वर। that you can also invest in real estate, right, in chunks, which is known as REITs, real estate investment trust, right? So there also 5,000 हमने real estate में भी डाल दिया। मेरे पास में 1 करोड़ नहीं है फ्लैट लेने के लिए, लेकिन मेरे पास 5,000 है, मैंने REITs ले लिए, राइट? वहां पे मैंने थोड़ा सा पैसा डाल दिया, right? That's how the diversification, you see, it's happening. So there won't be any time when all the financial instruments will give you the bad results. Somewhere something will definitely be increasing. अब अगर मैं इक्विटी मार्केट की भी बात कर लेता हूं, आपने जिक्र छेड़ा कोविड का, राइट? कोविड में इंटायर स्टॉक मार्केट वाज क्रैशिंग, लेकिन एक चीज की डिमांड बढ़ गई थी। किस चीज की? ऑनलाइन प्रेजेंस की, या बिजनेस बढ़ गया था, ऑनलाइन शॉपिंग, पीपल वर आस्किंग फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। आपने देखा होगा उस समय बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए, राइट? लेकिन आप देखें कि उस समय ई-कॉमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज की डिमांड बढ़ी थी, वो थी मेडिसिन, दवाइयों की। जी। So if you see the history at that time, सारे pharma stocks were there somewhere at the top, right? Then we talk about FMCG, यानी आप में सर युद्ध चल रहा हो, कोविड चल रहा हो, कोई काम ना हो, कुछ हो, पर 3 टाइम की मील तो जरूर लेंगे। बिल्कुल। तो जो FMCG स्टॉक्स हैं, फास्ट मूवमेंट कंज्यूमर गुड्स जिनको हम कहते हैं, जो खाने पीने का आइटम है, राइट, नहाने का आइटम है, हाँ, द कंपनीज लाइक हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट, राइट, ये तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। सो दीज आर नोन एज डिफेंसिव स्टॉक्स। डिफेंसिव स्टॉक्स का मतलब होता है कि ये आपके पोर्टफोलियो को पूरा डूबने नहीं देते हैं। देखिए है कि आज का जो युवा है वो चाहता है रातों रात अमीर बनने का। इफ यू सी एनी इन्फ्लुएंसर, you they wanted to be overnight rich. So wealth mindset is not an overnight richness. It is about a 3 aspects which I always talk about. It is a combination of 3 aspects, which is skill set, mindset and discipline. तो स्किल सेट से आप पैसा बनाते हैं, माइंडसेट से आप सीखते हैं कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, एंड डिसिप्लिन इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो जब भी आप वेल्थ माइंडसेट की बात सोचें
या कहें या किसी से भी डिस्कस करें, वन थिंग एज अ एस्ट्रिक मार्क उस पर जरूर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म। सो इसीलिए इट डज नॉट हैव टू बी शॉर्ट टर्म कि मैंने आज एक बहुत अच्छा स्टॉक जा रहा है या आज एक कोई बहुत अच्छा मैंने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख लिया, नॉट जस्ट स्टॉक्स, एनीथिंग विच इज ग्रोइंग रियली फास्ट, सो आई विल पुट लॉट ऑफ मनी इन देयर एंड देन ओनली टू फाइंड आउट कि 6 महीने बाद वो क्रैश हो गया, राइट? सो you have to think about balancing it out, right? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप देखो मैंने कितनी सारी आपको चीजें बताई जहां पे आप पैसा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जी। आज इंडिया में एक और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से उभर रहा है। यस, इंडियन गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड वेरी हेवी टैक्सेस इफ आई टॉक अबाउट इट, बट देन ऑप्शन ये भी है क्रिप्टो करेंसी, दैट इज बीन एन ऑप्शन, राइट? सो डाइवर्सिफाई आपको पैसा करना है। मैं कहता हूं कि आप 25,000 रुपए में से मात्र 1,000 रुपए का, जस्ट 1,000 रुपीज का रिस्क ले लेते हो आप कि क्रिप्टो को समझने में। लेट अस सी कि व्हाट क्रिप्टो इज, वेयर दिस मनी इज गोइंग, because today you see, if you watch the leading Indian news channels like Zee Business or CNBC Awaaz, they are also talking about the trend of Bitcoin। मतलब उनकी पूरी न्यूज चैनल में एक न्यूज बिटकॉइन की ट्रेंड पे भी आती है। तो अगर इंडिया के लीडिंग न्यूज बिजनेस चैनल्स भी क्रिप्टो की न्यूज को कवर कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी मार्केट कहाँ होगी। सो अगेन डाइवर्सिफिकेशन, पीयूष, जहां भी आप डाइवर्सिफिकेशन सोचेंगे आपको दिखेगा कि फाइनेंशियल मार्केट को अंडरस्टैंड करना इज जस्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग एन ओशन, and that is where I say you definitely need a financial expert, you need a certified financial advisor जिसके साथ आप बैठ के अपना पूरा फाइनेंस प्लान करें। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, हम मकान बनवाते हैं तो उसका स्पेशलिस्ट आर्किटेक्ट ढूंढ लेते हैं जी। हम कोई केस लेना चाहते हैं तो हम सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवोकेट हायर करना चाहते हैं। हम बीमार होते हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब हमारी वेल्थ पे बात आती है तो हम कहते हैं नो वन इज द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट पे डालूंगा, म्यूचुअल फंड ढूंढूंगा, टॉप स्टॉक्स ढूंढूंगा। तो टॉप स्टॉक्स जो आप ढूंढ रहे हैं वो आज के टॉप स्टॉक्स हैं, क्योंकि उनका हिस्ट्री आज तक उनको टॉप पे ले आया। पर क्या वो अगले 10 साल पे उसी हिसाब से बढ़ेंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। सो यू हैव टू सी राइजिंग सेक्टर्स। आज 2026 में बैठ के हम जो स्टडी करते हैं वो ये स्टडी करते हैं कि 2030 2035 तक कौन सी इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू बी द राइजिंग इंडस्ट्री, एंड दैट मेक्स अ बिग मनी बिकॉज नोबडी नोज देम टुडे, but tomorrow they will shine like a superstar। और इसी से डाइवर्सिफिकेशन से मुझे एक मज़ेदार किस्सा याद आया, मतलब इट वाज रियली एम्बैरेसिंग फॉर मी बट देन आई विल शेयर कि मैंने ना क्या करा कि 500 रुपए के 2 स्टॉक्स खरीदे, राइट? 1000 रुपए के स्टॉक्स हो गए। 6 महीने बाद वो स्टॉक ने 500% ग्रोथ दे दी, राइट? सो आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि ये मैंने ये जो स्टॉक्स थे ये मैंने 500 स्टॉक्स क्यों नहीं खरीद लिए या 100 स्टॉक्स तो भी क्यों नहीं खरीद लिए। अब वो जो 500% ग्रोथ है ना वो मैं प्राउडली किसी को बता भी नहीं सकता क्योंकि वो इतना एम्बैरेसिंग है क्योंकि मैंने 2 ही स्टॉक्स खरीदे। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यू नो, जब आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है बहुत ज्यादा नहीं बट स्टिल इट added to value to my portfolio or my wealth, right? So जरूरी नहीं है कि हर ऑप्शन में आपको एकदम गोल्ड और डायमंड स्टैंडर्ड की चीजों का रिटर्न मिलेगा, राइट? बट लेकिन वो कुछ ना कुछ एरिया आपके फाइनेंशियल हेल्थ में आप कुछ ना कुछ एरिया को वो कवर करके रखेगा, राइट? सो आपको वो चीज को सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है कि हर ऑप्शन से मुझे 20% रिटर्न मिलेगा। कुछ ऑप्शन से आपको 5, 6, 7% भी रिटर्न मिल सकता है, कुछ ऑप्शन से आपको 500% भी रिटर्न मिल सकता है, राइट? पर जब आप उसको बैलेंस आउट करोगे और एवरेज आउट करोगे तब आपकी रियल वेल्थ कैलकुलेट होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा और बताया। एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू पीयूष, फॉर हैविंग अ गुड वेल्थ and especially for your retirement age।
अच्छा, एक चीज कन्हैया सर और भी आती है विच इज हम्म, कॉल्ड एज फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, हम्म। इट्स अ वेरी बिग बज़वर्ड दीज डेज, राइट? सो इसको थोड़ा सा आप डीमिस्टिफाई करें। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हिसाब से क्या होगी? See, during my entire career, I have got one thing very clear कि कोई भी चीज हो उसको सबसे आसान तरीके से कैसे समझा जा सकता है और समझाया जा सकता है। सो वही फॉलो मैं करूंगा आपके साथ भी इस डिस्कशन में। सो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपके पास में सही पैसा हो, सही मात्रा में पैसा हो और उस पैसे को एंजॉय करने का समय हो। दैट मीन्स यू शुड हैव द मनी and the time to enjoy that money, right? Because if you are thinking about financial freedom, it's not about being millionaire or a billionaire, right? It could हम्म, also be something which is a small amount of money, but then I have the time to enjoy that money also. In the rat race, when everybody is now working for 7 days, you see, there are certain people who are very adamant to work for 5 days and just 2 days on themselves, right? They are traveling, they are pursuing their hobbies, they are going to maybe having a gala time with their family, so they wanted to enjoy that money, right? आज की जेन जी बोलती है कि you only live once, YOLO generation में है हम। योलो, या You only live once, absolutely, you only live once, right? However, whenever you are living at any state of time, you are also going to get old, उसके लिए आपको पैसा भी चाहिए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेव एंड इन्वेस्ट फॉर योर ओल्ड एज, बट डू नॉट forget your present age. So for me, financial freedom is very simple. You should have enough money and enough time to enjoy that money. Very, very simple, right? ताकि देखिए आपको पैसा खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़े कि मैं क्यों खर्च कर रहा हूँ, और उसके खर्च करने के बाद आपको गिल्ट ना हो कि मैंने खर्च कर दिया या मेरी सेविंग अकाउंट खाली हो गया, लाइक दैट। तो इसमें दो माइंडसेट हैं। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा है जो बोलते हैं आज मैं 18 घंटे काम करके बहुत मेहनत करूंगा और 45 साल की एज में रिटायरमेंट ले लूंगा और फिर मैं अपनी पूरी जो मेरी बकेट लिस्ट है ना वो पूरी करूंगा। ठीक है? और दूसरे वो हैं जो ये बोलते हैं देखो काम तो करना है, ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को बर्नआउट नहीं करूंगा। मेरे को पैसा कम मिलता है तो चलेगा लेकिन मैं बर्नआउट नहीं करूंगा, लेकिन वो अंदर से जलते रहते हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, सो ये दोनों के लिए आपको क्या, आपके क्या मैसेज है? देखिए, बड़ा सिंपल सी कहावत है हिंदी में, कि दांत है तो अखरोट नहीं और अखरोट है तो दांत नहीं। जी अ, बात वही है कि आप क्या जिंदगी लेके चलना चाहते हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इंस्पिरेशनल क्लिप्स देखने का बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई लव वॉचिंग इंस्पिरेशनल क्लिप्स। आई वाज वाचिंग वन ऑफ अ very old person Instagram reel at some point of time. He was around 65 or 70, and he is creating wonderful reels on why I did not do all these things at my younger age. So that is also very, very important. हम 18, 20, 25, 30 पे ये सोच लेते हैं that I will definitely get retire at 45. But the condition apply is, do you have the discipline to stay invested till 45 and then enjoy at 45? Because 45 also is a great age to enjoy your life. But are you एग्जैक्टली। having that patience and the discipline to hold that money? Because what happens is, आप सोचे, जनरल साइकोलॉजी है, किसी पर्सन ने बढ़िया इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, राइट? जहां उसको एक अच्छा बैंक बैलेंस या एक अच्छी ग्रोथ दिखती है अपने अकाउंट में, 10 लाख, 15 लाख, राइट? What do you think the person is going to do with that? लाइफस्टाइल अपग्रेड। Exactly, वेरी कॉमन क्वेश्चन। exactly. Very common thing. Lifestyle upgrade. We will go या for a new car. We will go for some luxury item, maybe something, या and then that, हॉलीडे। then wealth get decreased. या Maybe if you have better patience, right? They still save somewhere more, right? And then what happens, right? The society pressure, the parental pressure, the peer pressure, या motivate them.
क्या यार तुम अभी किराए के घर में रहते हो, तुम्हारे पास अपना घर नहीं है. So again, the wealth which he was creating, he got invested it into a maybe residential home. And residential home, by the way, is not giving you any returns. It is just a place where you're residing. It is not giving any returns. Yeah, I heard it somewhere like Hmm. the house you are living in is not your asset. It's not It's a liability. Abs- You should always treat it as a liability because घर बिना घर के तो आप रहोगे कहाँ, Hmm. राइट? सो कल को अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप अपना घर नहीं बेच सकते हो, राइट, पैसे के लिए. बिल्कुल. और वैसे ही आपको मान लीजिए थोड़े पैसे की भी जरूरत है, तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि चलो मैं घर का एक कमरा बेच देता हूँ, मैं घर की खिड़की दरवाजे बेच देता हूँ, राइट? राइट, ये तो नहीं कर सकते. इट इज कंप्लीटली गॉन, Yeah. राइट? एल्स यू कैन नॉट. सो अब यहाँ पे वही बात आ गई पीयूष की अगर हमारे पास में पैसा वही एक इन्वेस्टमेंट के रूप में ग्रो कर रहा था तो हम जी. उस वेल्थ माइंडसेट पे इन्वेस्ट अर्ली रिटायर रिच के हिसाब से हम 45 पे रिटायर हो सकते हैं और कर भी सकते हैं. माई ओनली सजेशन वुड बी to have that patience and discipline to wait for 45 and do not touch that money till 45. If you can do that, nothing like it. तो फिर आप बढ़िया 18 से 45 तक बढ़िया काम करो, मेहनत करो, 18 घंटे काम करो और बढ़िया वेल्थ बनाओ, बढ़िया पैसा कमाओ, अपना स्किल सेट माइंड सेट यूज करके और 45 पे रिटायर हो जाओ. Enjoy your life. You can completely create your bucket list. However, again, the disclaimer is, do you have the patience and discipline to let that wealth grow without touching? Right? So ये वैसे है मतलब एग्जाम्पल है, चाहे तो हम इसको यूज भी करना चाहें तो कर सकते हैं कि जैसे all the old wine is always expensive, right? So the older the wine, the expensive it is. Expensive it becomes, right? दाम कैसे बढ़ते हैं? समय के साथ बढ़ते हैं. जी. तो जितनी पुरानी है उतना ज्यादा आप उसके लिए पैसा प्रीमियम पे कर रहे हो. तो वैसे ही जैसे आपका पैसा है वो जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है उतना बढ़िया ग्रो करता है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत सिंपल मैथ का कैलकुलेशन जो हम लोगों ने 5th-6th क्लास में भी फॉर्मूलाज के रूप में पढ़ा था, विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंडिंग ग्रोथ इज अ ब्रिलियंट टूल. नथिंग अच्छा, आप देन कंपाउंडिंग. अच्छा, आप किस तरह की लाइफस्टाइल जीना चाहेंगे? ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें मैंने बहुत साल मेहनत करके कुछ पैसा बना लिया, राइट? अब मुझे कोई पैसा नहीं आ रहा, बट वो पैसा इतना है कि मुझे पता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ सरवाइव कर सकता हूँ. या फिर उन सालों में जब आप मेहनत कर रहे थे तब आपने एक ऐसा सिस्टम बना लिया कि अब मुझे लाइफ टाइम पैसा आता रहेगा और ये करते करते मैं अपनी लाइफ भी इंजॉय करूंगा. I think second option is better for me. Building a pipeline and enjoying your life also. तो ये सेकंड ऑप्शन के लिए फॉर्मूला क्या है कन्हैया सर? देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप अपनी एक मनी जार्स बनाइए. सो इसे कहते हैं मनी जार्स बनाना. सो वट एवर इनकम दैट यू आर गेटिंग, उसका पहला तो एक जार आपका हो जाता है आपके मंथली फिक्स एक्सपेंसेस में, वो तो सेपरेट हो, राइट? एक मनी जार आप बनाते हैं अपने लिए विच इज टू बी फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स. एक मनी जार आप बनाते हैं आपकी अपनी खुद की लर्निंग के लिए, मे बी 10% ऑफ दैट, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली लर्निंग जर्नी में हैं अगर, तो ऑब्वियसली बात है आपका स्किल सेट इंप्रूव होता रहेगा एंड यू विल बी एबल टू अर्न, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं मानता हूं, क्योंकि मैं ट्रेनर भी हूं, इसलिए मैं ये मानता हूं कि वो जो 10% का मेरा मनी जार है जिसको मैंने अपने लर्निंग गोल्स के लिए रखा है, दैट इज मस्ट. 10% का मैं पैसा रखना चाहूंगा फॉर माई प्ले जार जिसको कहते हैं. दैट मीन्स दिस एंटरटेनमेंट जार और अ प्ले जार, ये 10% स्पेसिफिकली मुझे महीने के आखिरी में खर्च करना ही करना है. किस पे? अपने एंटरटेनमेंट पे, अपने एंजॉयमेंट पे, घूमने फिरने पे. जब आप इस तरीके का एक डिसिप्लिन अप्रोच कर लेते हैं कि आपका इतना पैसा मेरा एक्सपेंसेस में चला गया, इतना पैसा मेरा एजुकेशन में चला गया, इतना पैसा मेरा फ्यूचर वेल्थ बिल्डिंग में चला गया, इतना % पैसा मेरा प्ले में चला गया, सो योर लाइफ बिकम्स काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड. फिर आपको पता है कि मेरी लिमिट कितनी है
इस बार एंजॉय करने की, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस आपने एक एग्जांपल लिया था, फिगर दिया था मुझे, तो 10,000 रुपीस मुझे हर महीने अपने एंजॉयमेंट में खर्च करने हैं। अब मुझे वो 10,000 रुपीस खर्च करने में गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो मेरा प्लेजर है ना, वो तो मुझे वैसे भी खर्च करना ही था। एग्जैक्टली मतलब आपने अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर लिया कि मुझे हर महीने 10,000 रुपये अपने एंटरटेनमेंट पे खर्चा करना है। अब वो 10,000 में मैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदूं या मैं मूवी देखने जाऊं या मैं उसको कहीं और खर्चा करूं, डजेंट मैटर। पर एब्सोल्युटली योर माइंड इज ट्रेन्ड इन अ वे कि भाई ये 10,000 ही खर्चा हो रहा है, राइट? आई डोंट हैव अ गिल्ट कि बाकी का जो मेरा 90,000 है उसमें से अरे यार ये महीने तो मैंने बहुत सारा क्रेडिट कार्ड पे चीजें खरीद ली, अब मुझे अगले महीने बिल पे करना पड़ेगा, राइट? तो इसमें एक क्रेडिट कार्ड एक और बहुत बड़ा हिंडरिंग फैक्टर है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपको क्या देता है फैसिलिटी कि अभी ले लो बाद में पे करो, राइट? एंड देन पीपल, आई हैव सीन पीपल spend more in interest while paying credit card bills then they actually buy from the credit card, क्योंकि उसकी डेट आपकी हमेशा मिस हो जाती है and then you end up the interest ends up compounding. So जैसे आपने बोला कंपाउंडिंग है, तो वो इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, उसकी जगह आप सेविंग कंपाउंड पे फोकस करोगे तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, राइट? True. And that's why I always say the first thing that you should get rid of if you want to build a wealthy mindset, if you want to build a big wealth, is first thing is that you get out of your debt. You believe I don't have any debt on my head, so I'm like completely loan free. राइट, मैं किसी प्रकार के लोन ईएमआईज पे नहीं करता और इसलिए मैं बहुत बढ़िया से फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री रहता हूँ। अच्छा, बात हो रही डेट की, तो डेट इज अ काइंड ऑफ टॉपिक आई एम प्रीटी क्यूरियस अबाउट। दो तरह के डेट होते हैं, गुड डेट एंड बैड डेट, राइट? तो इसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट करिए कि लेट्स क्लासिफाई कि गुड डेट कौन से हैं और बैड डेट कौन सी चीजें हैं। देखो, पहले तो यही है कि कोई भी किसी भी तरीके का डेट मैं मानता ही नहीं कि गुड डेट है। हालांकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बोलते हैं गुड डेट एंड बैड डेट, क्योंकि ये फाइनेंशियली यूज किए जाते हैं टर्मिनोलॉजीज। तो अगेन इसको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। बैड डेट इज द डेट विच इज क्रिएटिंग मोर ऑफ योर लायबिलिटीज एंड गेटिंग इट इनटू अ बैड डेट मींस दैट यू एंड अप पेइंग मोर देन व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर। आज की डेट में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा लोग जो डेट लेते हैं, लोन लेते हैं, राइट, अपनी लाइफस्टाइल में सबसे इसेंशियल आइटम मान लेते हैं वो एक कार, राइट। अब वो कार के लिए लोन लेते हैं। एक तो देखो, कार आपका पहले से ही डेप्रिशिएटिंग एसेट है, राइट। द मोमेंट द कार इज आउट ऑफ द शोरूम, वैल्यू डेप्रिशिएट्स, राइट। अब आपने फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज का एक नॉमिनल लोन ले लिया, कार लोन ले लिया। सो अगर आपने उसको 5 साल में भी चुकाया विद इजी ईएमआई, राइट, एनी आइडिया आप 5 लाख के बदले कितना दें? ऑलमोस्ट डबल ही देंगे, आई गेस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यानी 5 लाख रुपीज का लोन आपने लिया, आप ऑलमोस्ट उसका डबल दे रहे हो, राइट। मे बी थोड़ा सा आपको एक बहुत अच्छा डील भी मिल गया तो भी 8 to 9 लाख रुपीज तो कहीं नहीं गए। सो फॉर अ 5 लाख रुपीज लोन यू आर ending up paying 8 to 9 lakh rupees, and that too for an asset which is depreciating asset। वो 10 लाख की गाड़ी वैसे ही शोरूम से निकलते हुए 8 लाख की हो गई थी। 5 लाख आपने लोन लिया था, उसके ऊपर भी आपने 8 लाख दिया। तो इफ यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ योर कार, an intelligent person will say I'll not buy a car। बट दैट हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल, राइट? अगर आपके पास कार नहीं है तो लोग ये बोलते हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं है, या इसका शायद हो सकता है इसका काम अच्छा नहीं चल रहा है, ये टू व्हीलर पे जाता है या फिर ये ऑटो में या टैक्सी में जाता है, तो पता नहीं इसका शायद जॉब या बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा होगा, इसलिए इसके पास कार नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। तो अभी आप देखो, आपकी देखिए ज्यादातर ऑडियंस इज इनटू एंटरप्रेन्योर, बट I believe that today the entrepreneur also is a kind of a buzzword in a corporate. So there are lots of corporate people also who wants to come into entrepreneurship sooner or later. तो एक बहुत अच्छी बात मुझे किसी ने
बहुत अच्छे से प्यार से समझाई, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने बोला कि हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं यार, राइट? कॉर्पोरेट में जब हम जाते हैं तो वी ड्रेस वेरी वेरी एक्सक्लूसिव, वी गो फॉर द ब्रांडेड थिंग्स, वी शुड हैव अ ब्रांडेड फोन, राइट? हाई क्वालिटी फोन, राइट? बिकॉज दैट इज एडिंग टू माई स्टेटस सिंबल, राइट? ब्रांडेड क्लोथ्स, मेरा बैग बहुत अच्छा होगा, मेरी वॉचेस बहुत अच्छी होंगी, right? जी, And I'll be traveling with a luxury car or a good premium car कार, at my office. Huh? Good, wonderful, very nice. पर कल को अगर आप बीमार पड़े तो जो आपके कुलीग्स, ऑफिस कुलीग्स जो है, जो आपकी ब्रांडेड वॉच, मोबाइल, बैग, क्लॉथ्स को देख रहे थे, उनमें से कितने लोग आएंगे आपको हेल्प करने के लिए? और आपका कौन सा ब्रांडेड वॉच या ब्रांडेड मोबाइल आप इन कैश करोगी अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, right? So obviously it adds to a status symbol, and that's why we say that life of a wealth mindset is a minimalistic life. It is a life where you are enjoying your life with the financial freedom without the burden of that status symbol, right? हम सब लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे मशहूर इन्वेस्टर हुए वॉरेन बफे, जी, और अगर आप उनकी लाइफस्टाइल देखें सर तो totally minimalistic lifestyle. No luxury, nothing doing, lives in a normal house, राइट, uses public transport, या which is like kind of like richest man in the world is using sometimes public transport. Like राइट, उनके पास कोई ऐसी बहुत बड़ी गाड़ियां या ये नहीं होगा, मुझे पता नहीं है कि होगा भी तो। he has one own car who he drives self, या he drives self. उनके पास में नॉर्मल सा कीपैड वाला फोन है, वो कीपैड फोन जब आने बंद हो गए तब उन्होंने टच वाला फोन लिया। जी, So mindset is not about the status symbol. It is about how much you enjoy your life in everything that you are doing, right? आप देखिए हमारे कॉस्मेटिक ब्रांड में, आई एम जस्ट मेंशनिंग अ ब्रांड नेम, मिनिमलिस्ट, उसने अपना जी, कितना सिंपल सा ब्लैक एंड वाइट पैकिंग के साथ अपना ब्रांड लॉन्च किया विद मिनिमलिस्टिक अप्रोच, minimalistic chemicals or whatever ingredients that brand has, and it is now very popular, right? Even if we talk about iPhone का जो की पॉइंट था सेलिंग का, वो यही था कि इट इज वेरी सिंप्लीफाइड, इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली फॉर द यूजर टू यूज इट। तो जितनी भी अच्छी चीजें अगर आप देखेंगे लाइफ में तो वो आपको सिंपल मिलेंगी, मिनिमलिस्टिक मिलेंगी, राइट? एंड yeah, but दिस थिंग इज simplicity is not that simple that's tricky. because we live in a society, Hmm. right? And there's a lot of judgments and assumptions that are around us, Hmm. right? हमारे हमारे assumptions हमें देखकर जो जजमेंट लिए जाते हैं, मतलब जजमेंट लोगों का होता है, Hmm. उसके हिसाब से हमारे assumptions डेवलप होते हैं Hmm. while we are growing up, right? इसके पास अच्छी गाड़ी नहीं है यानी ये सक्सेसफुल नहीं है, इसके मार्क्स अच्छे नहीं आए इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है इसका मतलब है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, Hmm. राइट? Hmm. तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि जब हमारे पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो वी स्टार्ट टू शो ऑफ कि हाँ देखो मैं भी सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास भी पैसा है, मेरे पास भी एक ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ, मेरे पास एक अच्छा फ़ोन है, मेरी वॉच देखो कितनी महंगी है, कोई तो भी ब्रांड की, राइट? बट यहाँ हम ये भूल जाते हैं कि ऑल ऑफ दिस इज़ नॉट परमानेंट, राइट? Absolutely. So the people who are suffering from that LKK syndrome, लोग क्या कहेंगे syndrome, right? So keep on thinking like this. So me from my very childhood have never ever thought of what will the people say, right? I have always led my own path in terms of my career, my choices. So that's what I say that my opinion is. I'm not imposing any opinion of mine to anybody else, but that's how I live. I do not care about what people will say. Otherwise I would never ever have been a trainer.
फिर तो मैं लीग फॉलो करता ना, मैं डॉक्टर, जी इंजीनियर, लॉयर, हाँ कुछ इस तरीके का बनता, राइट, एकदम ऑफ स्ट्रीम करियर, ट्रांसफॉर्मिंग पीपल, बिल्डिंग द कैपेबिलिटी ऑफ पीपल, coaching people, mentoring people, motivating people, right? So that's what I choose. This is completely off track as per uh, if I talk about my family culture, right? Most of us in my family were there into jobs. Still there are my cousins and friends who prefer job, right? But I definitely have a choice that that entrepreneur journey, that financial freedom journey, that kind of a mindset which can work in any given situation or environment and still be happy. इसी बात पे मेरे को एक अंकुर वारिकू जी का इंस्टाग्राम पे पोस्ट याद आया, विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई गॉट हुक्ड अप कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी तुम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्हैया सर, एक माइंड में ना एक जद्दोजहद चलते रहती है, मनी वर्सेस फ्रीडम। If you want freedom to do something you like doing, you need money. Absolutely. And if you need money, you can't have freedom. तो आप इसको कैसे देखते हो? So आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। सेकंड में थोड़ा सा ट्विस्ट है that if you want freedom you need money. No, freedom doesn't require money, right? Freedom requires your mindset. That's why I said skill set, mindset, discipline. So freedom is all about your mindset. Freedom is not about being free and doing nothing. Freedom is about you are doing something and still you are feeling free. अभी का सिचुएशन ले लेते हैं पीयूष, मैं और आप बात कर रहे हैं, हम लोग कितना फ्रीली बात कर रहे हैं, कितना हम लोगों को एक ऐसा फ्रेंडली कन्वर्सेशन चल रहा है, हम लोग बातें कर रहे हैं, और ये क्या इसको आप फ्रीडम नहीं कहते? हम लोग कितना फ्रीडम के साथ बात कर रहे हैं। क्या हमारे कोई ऐसे एप्रीहेंशंस नहीं है, कोई हमारा ऐसा वो नहीं है कि मैं ये बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, या आप पूछेंगे तो मैं क्या सोचूंगा। वी आर टॉकिंग सो वेरी फ्रीली, इजंट इट? इट्स अ स्टेट ऑफ अ फ्रीडम। Right. When people think about freedom, they think about doing nothing 24 hours, right? मैं कुछ नहीं करूंगा जी, एक हफ्ते कुछ नहीं करूंगा, एक महीने कुछ नहीं करूंगा जी। That's not something for which you are born. You are born here in this world with some purpose, right? That purpose has to be fulfilled by any means. So for me, freedom is what? For me, freedom is that if I wake up early in the morning, I'm free to go to my yoga classes and gym classes and do the entire activity with completely stress free. It's me time. I'm enjoying that time. I'm having a complete free state of mind at that time. Then I start working for the day, right? And that too, I'm enjoying because it's my passion which I'm following of training people, right? So again, I'm enjoying that when my audience is sitting in front of me and they are appreciating the teachings which I'm giving to them. That brings me an absolutely happy state of mind, which is again a freedom, right? In the evening, I'm spending a good time with my daughter, with my family, sitting with my parents, enjoying and sharing their thoughts. That's again a very, very good freedom that I have. How many people have this kind of a freedom which they can do and have a luxury of the time to spend with the families, talk with their friends on phone or maybe in person, right? Spend some time on some learning, right? My evenings are basically divided into two parts. One part where I am sitting with my daughter, teaching her, and then when she goes off sleeps, another 35 minutes or 1 hour max for my own learning, right? And I really enjoy this freedom because I know whatever I want to do, I can do with absolute freedom. So when people talk about freedom, they generally think about कि हम कुछ भी नहीं करें और पैसा आता रहे, right? And that's how the concept of
passive income is a very buzzword these days. या लोग ये भूल जाते हैं कि पैसिव इनकम बनाने के लिए पहले एक्टिवली काम भी तो करना पड़ेगा दोस्त. हाँ, मतलब पैसिव इनकम अचानक तो प्रकट नहीं हो जाएगी ना आपकी लाइफ में. राइट. या तो भाई आप एकदम ही बहुत ही एकदम रईस घराने के बच्चे हैं, जी. born with a silver spoon and you are not doing anything and still you are enjoying. So you take the example of the legendary people of India or any world person, right? Any legendary person, if you talk about, maybe for example, generally we talk about Adanis, we talk about Ambanis, we talk about Tatas and all these, right? Yeah, even for those matter, the celebrities, the rich celebrities who had crores and crores of rupees in their bank account, उनके बच्चे क्यों काम कर रहे हैं? उनके बच्चे क्यों मेहनत कर रहे हैं? उनके पास तो पैसा है. हाँ, इतना पैसा है कि वो कुछ भी ना करें तो भी जरूरत ना पड़े. बिल्कुल. Then why are they working? Why are they showing up in meetings? Why are they coming and giving speeches, going for the board meetings, opening new divisions of their business? Because freedom is not, again, not doing anything. खाली बैठोगे तो फिर तो आप लाइक खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं, राइट? खाली जी. तो आप क्या कर रहे हो? आप फिर 24 घंटा बिंज वॉचिंग कर रहे हो या फिर आप सिर्फ ट्रैवल ही कर रहे हो. लेकिन जो फ्रीडम है, दैट इज अ ब्लेंड ऑफ यू बीइंग डूइंग समथिंग एंड स्टिल फीलिंग फ्री, राइट? दिस इज अगेन माय ओपिनियन व्हिच आई से कि चाहे आप कुछ भी वैल्यू ऐड कर रहे हो, चाहे अपनी लाइफ में, चाहे दूसरों की लाइफ में, एंड यू आर कंप्लीटली डूइंग इट with a free state of mind, with a complete freedom. That is how I believe the combination of freedom and money. And that's why I say ki, the 10% of your entertainment jar and money jar is something that you should always spend on yourself and enjoy that luxury. अगर आपको लगता है ये 10% मेरे लिए कम है, मेरे पास मनी अच्छा खासा है, I wanted to make more merrier days, you can increase this jar capacity to maybe 20%. राइट. But राइट. करो दोस्त, हाँ, मतलब सारा क्या ही करोगे, हाँ? अच्छा, एक चीज और है कन्हैया सर कि बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट, वो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे जाते इसलिए हैं क्योंकि जॉब डजंट गिव देम फ्रीडम टू डू थिंग्स दे लव डूइंग बिकॉज यू हैव टू रिपोर्ट टू समवन. ठीक है, अब यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना. आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, तो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट टू एनीबडी, राइट. अब ये तो बात हो गई कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में फ्रीडम मिल गई, ठीक है. लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के लिए वेल्थ माइंडसेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी देखिए, दो चीजें, एक तो मेरी पर्सनल वेल्थ है और दूसरी है मेरी कंपनी की ग्रोथ और उसकी वेल्थ, राइट. मुझे तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, राइट. आई हैव गॉट माई फ्रीडम पीस, बट द मनी पार्ट हैज टू बी दैट वे कि बेसिकली ये दोनों साथ में बढ़े. ऐसा ना हो जाए कि बेसिकली मेरी कंपनी आगे बढ़ रही है लेकिन मेरी पर्सनल वेल्थ तो डिप है, मतलब मैं डेट में बैठा हुआ हूँ, ठीक है. या फिर ऐसा ना हो जाए कि कंपनी से सारा पैसा मैंने निकाल लिया और अब कंपनी लॉस में चल रही है लेकिन मेरी पर्सनल वेल्थ अच्छी है, क्योंकि दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है. अगर ये दोनों साथ में नहीं बढ़ेंगे तो मेरी ग्रोथ नहीं है एज एन एंटरप्रेन्योर. सो पहली चीज तो ये है कि अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर जर्नी की स्टार्टिंग की बात करूं और उसको मैं एक स्टार्टअप कैटेगरी में डालूं, सो द स्टार्टअप कैटेगरी इज अ काइंड ऑफ अ कैटेगरी वेयर यू आर द वन हु इज अ स्वीपर एंड अ सीईओ बोथ, right? Because you are the one who is actually opening your business in the morning, right? People get so very excited and get influenced by the so-called digital media or a social media, and they think that if that person can do it, I can do it. Wonderful. But do you know what is the struggle that person has gone with? Right? I was watching one of a video of a lady who is having now a multi-chain restaurant, right? But then when we know the starting phase, she was selling the food on street, right? So that's how. So people see that chain of restaurant there. They do not see that one point of time she was also selling the food on the street, right? So जब आप एंटरप्रेन्योर में बात करते हैं तो उसमें
आपने बहुत बोला कि मैं नहीं गया, अगर तो मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है, वेरी ट्रू, पर आपको अपने आप को देना है। बिकॉज अगर आप 3 दिन नहीं गए तो आपका 3 दिन का एक बड़ा बिजनेस लॉस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मनी लॉस, राइट? वेयर एज इफ यू आर देयर इन अ जॉब, अगर आप 3 दिन नहीं गए तो आप 3 दिन की मेडिकल लीव ले लोगे और आपका कोई भी सैलरी नहीं कटेगा, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू गेट। या पीपल से लेकिन मुझे तो मेडिकल लीव के लिए जी अप्लाई करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, बॉस से पूछना पड़ेगा, अरे इतनी फॉर्मेलिटीज, नो 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 आई डोंट वांट टू डू दिस। मैं तो खुद अपना कुछ भी स्टार्ट करूंगा, मैं अपना ही स्टार्ट करूंगा जी, अरे जी मुझे नहीं सुननी किसी की, ये लो अपनी हाँ नौकरी अपने पास, मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। गुड, बहुत बढ़िया, हाई पैशन, वेरी नाइस। डू यू हैव अ प्लान? Do you have the right strategy? Do you have that passion that if nothing comes to you in returns for another 6 months, you will be able to sustain, right? If you have done all these calculations, then go for your own entrepreneurship journey. All the best. Wonderful thing. Coming to your second question, which is how to balance between personal wealth and business wealth. So this is very, very important. And that's why the Indian government has certain laws which says that a director can also draw a salary from the business, even if it is your own business. So get into your own entrepreneur journey and make you as an employee of your own business. Draw a salary so that you know how much to withdraw from your business wealth. अब आपको पता है कि मान लीजिए कि आप डायरेक्टर हैं, आपने अपनी सैलरी रखी 2.5 लाख रुपीस, ठीक है जी, 2.5 लाख में ही मुझे अपना सब कुछ मैनेज करना है। हाँ क्योंकि जब आपका अपना बिजनेस होता है, अगर आपके पास अपना सही कैलकुलेशन नहीं है तो क्या होगा कि आप जो भी पैसा बिजनेस में आ रहा है, जैसे एक दुकानदार, बनिया दुकानदार करता है कि गल्ले में देखा, गल्ला खोला, अच्छा इतने पैसे हैं, चलो ऐसे हाथ डाला और जेब में डाला और जी चल दिए। सो देयर इज नो हिसाब किताब, है ना? कहीं पे भी कोई अकाउंटिंग नहीं बन रही है कि कितना पैसा मुझे बिजनेस में अगला माल लाने के लिए लाना है और कितना मुझे अपने घर लेके जाना है, क्योंकि मुझे घर जी पे राशन भी लेके जाना है। सो दिस जी बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द बैलेंस कैन अगेन बी डन ओनली विद अ गुड अकाउंटिंग डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन यहाँ पे भी आ गया, देखिए, है ना? ये जी शब्द घूम घूम कर आ जाता है। घूम घूम कर आ जाता है ये मतलब discipline- अगर अगर मैं अपनी कंपनी में महीने में 5 लाख रुपए का बिजनेस ला रहा हूँ, ठीक है, सब ऑपरेशंस वगैरह करने के बाद मुझे बेसिकली 2 लाख रुपए बच रहे हैं, तो मैंने ये डिसाइड करना चाहिए कि नहीं यार, वो 2 लाख रुपए मैं घर ले जाके अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करूंगा या अपना कहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसकी जगह मुझे उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए कि भाई मैं हर महीने कंपनी से कितना ड्रॉ करूंगा, Correct. which has to be realistic, not non realistic, Good. right? That is what you mean Good. कि भाई ठीक है, प्रॉफिट में से if I am a director, I might take like 15 or 20% of the profit, take home, and then basically run my that should cover my living expenses and everything what I'm trying to do. अब अगर मुझे ज़्यादा घर ले जाना है तो मुझे अपना बिजनेस भी 5 लाख से 10 लाख पे करना चाहिए, ताकि उसका 10-15% जो भी 20% मैं लेकर जा रहा हूँ वो अमाउंट बढ़े, रेदर देन कि अभी ये महीने में मैंने सोचा कि मैं 20% ले जाऊंगा, नेक्स्ट मंथ भी 5 लाख का ही टर्नओवर हुआ और अब मैं बोल रहा हूँ अब मैं 40% ले जाऊंगा क्योंकि 20 में तो मेरा घर चल नहीं रहा ठीक से। तो ये डिसिप्लिन तो बनाना पड़ेगा ना पीयूष जी। ये डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा और ये डिसिप्लिन बनाने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जॉब नहीं है, हाँ, राइट? हाँ, कि आपको हर महीने की 1 तारीख को पे चेक मिलेगा। हाँ, कभी-कभी एंटरप्रेन्योरशिप में 6-6 महीना पेमेंट नहीं आती है, बिल्कुल, राइट? और उस समय बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली गिव अप कर देते हैं, बिल्कुल। राइट? सो एटलीस्ट 6 मंथ्स का प्लान अगर हम बना के चलें तो मे बी दैट्स अ गुड स्टार्ट। Yes, that's a good start. And 6 months is minimum. Let me tell you, 6 months is minimum. There are certain businesses जो आपसे और वर्किंग कैपिटल भी मांगेंगे, बीच बीच में जी और वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगी, तो उसका बैकअप, राइट? और अगर मान लेते हैं कि 6 महीने में भी बिजनेस नहीं बढ़ा, 8 महीने लग गए, 10 महीने लग गए, तो 6 months से नीचे तो don't even think about starting your own business, right? At least 6 months is the prerequisite
with your expenses and with the running cost for that business. That's how you should start with an entrepreneur journey. And अगर आपकी entrepreneur journey चल भी रही है और आज आप entrepreneur हैं, तो ये बात बहुत ध्यान से सुनिए. Maintain your accounting balance, right? Plus बहुत सारे entrepreneur बिजनेस बहुत अच्छा शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको टैक्सेशंस के बारे में नहीं पता होता. जी टैक्सेशन समझो, इंडियन गवर्नमेंट ने बिजनेसेस के लिए इतने बढ़िया टैक्सेशन लॉज रखे हैं कि अगर आप अपने एक्सपेंसेस को, अपनी सैलरीज को, अपनी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, आई कैन टेल यू, यू कैन जस्ट विद अ गुड कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो यू कैन हैव अ लग्जरी ऑफ मेंटेनिंग योर बिजनेस वेरी वेल. सो टैक्सेशन से एक बात और मेरे ध्यान में आई कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपने बिजनेस शुरू करा, आपको समझ में आया कि मुझे तो टैक्सेशन समझता नहीं है और मुझे सब लीगल कंप्लायंस समझते नहीं है. सो यू टाई अप विद अ सीए और फिर सीए को बोला भाई तू देख लेना, क्योंकि ये तो मैं तो अपने एरिया में एक्सपर्ट हूँ, तुम अपने एरिया में एक्सपर्ट हो, तुम देख लो, राइट. एंड फिर वो इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन भी की एडवाइस भी वहीं से ले लेते हैं. ये किस हद तक सही है? देखिए, ये वैसा ही है कि आपके घर पे कोई प्लम्बर आया और आपने बोला कि मेरा टैप लीक कर रहा है, नल लीक कर रहा है, उसको ठीक कर दो. उसने वो ठीक कर दिया. फिर आपने उसी प्लम्बर से बोला मेरा पेट भी खराब है, उसकी भी कोई दवाई बता दो. So people should go to the specialist. CA is a specialist for giving wonderful tax advices. He is not a specialist to make you rich, wealthy. वो बता सकता है कि आपको ये करना है, इससे आपका 7%, 8%, 10% टैक्स बच जाएगा. Good, very nice. So pay CA his fees and get the tax advice. But ये जो 8%, 10% बचा है, ये इन्वेस्ट करके कैसे अच्छा ग्रो करेगा? Go to a good financial advisor and take financial advisor advice. That's how. And plus एंटरप्रेन्योर की जर्नी में पर्सन्स को बहुत अच्छा लगता है अपने नाम के नीचे सीईओ लिखवाने का. So who is a CEO? CEO is a person who is managing all the divisions of the company. That means right from the production to supply, marketing, administration, taxation, legal, new product development, everything. तो सबके लिए तैयार हो जाइए. You have to be a person who knows all the things, maybe not an expert, but you should have an idea. And even if you don't have the idea, you should know whom to contact to get the right idea. Absolutely, that is the point. Like you cannot be chief everything officer in your business, right? You are a chief executive officer. So आपका mindset और strategy क्या होनी चाहिए? How to grow. Yes. It should be growth mindset. It should be like, how am I going to go out in the market and basically tell people about my story, why I started this, right? How am I going to find right channel partners, right type of partnerships so that my business can scale up and grow? How am I going to find out the right kind of guidance or a mentor to basically help me grow in my business? As opposed to that, हम लोग जब न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं तो वो किस चीज़ में चले जाते हैं कि मैं क्लाइंट भी लेके आऊँगा, क्लाइंट को सर्विस भी करके दूंगा, उसके बाद उसको सपोर्ट भी करके दूंगा, एंड वो मुझे रात को 12 बजे भी कॉल करेगा तो मैं 12 बजे कॉल उठा के उसको सर्विस दूंगा. क्यों? क्योंकि वहां से धंधा आ रहा है, वहां से पैसा आ रहा है, राइट. पर ये साल 2 साल 3 साल चलेगा, फिर आप बर्नआउट हो जाओगे, राइट, क्योंकि आपने वो सिस्टम से नहीं बनाया. सो इन माय व्यू, चीफ executive officer should only be focused on growth and strategy, should only be involved in doing standard, creating SOPs, creating scripts so that your team will execute without you, right? Absolutely. अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर रहे हो जिसमें हर एक चीज के हर एक डिसीजन में आप इन्वॉल्व हो, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो. बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट कैन आई सेल समथिंग विदाउट मी इन्वॉल्व.
at a later stage, right? Slowly it happens. And can I sell something to multiple people, Hmm. right? Then you make a sustainable and scalable business, True. right? Absolutely. अगर आप हर कस्टमर के लिए कस्टमाइजेशन करोगे और हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप बिजनेसमैन नहीं हो, राइट? क्योंकि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, दे डोंट डू इट देमसेल्व्स, they make systems and train their team. They are coaches basically to coach their team so that their team will do it, right? They will not do it. Absolutely. बहुत 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 अच्छी बात बोली आपने पीयूष. System. So that's where the luxury lies. That's where the financial freedom lies. Build the system, right? Right. You remember just a couple of minutes back we were talking about कि हम कैसे करें कि हमारे पास मनी भी हो और फ्रीडम भी हो. Freedom भी हो. Where we build systems. That's where we build automations. That's where the Right. very very key role of a technology comes in. Yeah. So from the Absolutely. doer to delegator. So the entrepreneur journey is from a doer to a delegator. And delegation could be to the team members, to your employees, to the technology. And today in the world of AI, the best Yeah. delegation which we can do is give it to an AI. Huh? Absolutely, absolutely. And you should be having a system wherein you can keep a watch over these things. Mm. You don't need to get involved, but you need to know, Right. right? It is a very hard life skill to learn, क्योंकि किसी को काम डेलीगेट करना बहुत मुश्किल है. आपको हमेशा ऐसा लगता है अरे ये तो मैं ही कर लूंगा, क्यों बताऊं. और दूसरी चीज ये है कि किसी से रिपोर्टिंग लेना और उस रिपोर्ट में समझ के लेना कि बेसिकली इसने ये गलती करी क्यों, राइट? वी पॉइंट आउट मिस्टेक्स वेरी इजीली, बट उसने वो गलती करी क्यों, उस समय क्या सर्कमस्टांसेस थे जो उससे वो गलती हुई, राइट? वो समझ के उसको करेक्ट करने का जो माइंडसेट है वो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, राइट? तो मैंने पीयूष बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में काम किया, बहुत सारे जी. कॉर्पोरेट्स में मैं जाता रहता हूँ फॉर माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आल्सो, राइट? व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट a bad manager and a good manager, if I talk about, so good manager, when they delegate, they trust their team members, right? They know that this team member is efficient enough to do XYZ task. But Right. whereas some managers think that when I delegate, it's better to do, राइट? इससे अच्छा तो मैं ही कर सकता हूँ. यस, बिल्कुल आप उससे अच्छा कर सकते हो, बिकॉज आप मैनेजर हो, वो आपका टीम मेंबर है, या आप सीईओ हो, वो आपका एम्प्लॉय है, राइट? तो बेहतर कर सकते हो. लेकिन जब आप उससे बेहतर करने के लिए जा रहे हो तो कौन सा टास्क आप उससे बेहतर करोगे ये भी तो डिसाइड करो. अगर आप सारे ही टास्क खुद कर रहे हो तो फिर टीम क्यों हायर करी? एग्जैक्टली. तो और बिना टीम हायर करे ग्रोथ नहीं हो सकती. बिना टीम हायर किए ग्रोथ नहीं ले सकते. अकेले नहीं ग्रो कर सकते आप. बिल्कुल. तो आपको कहीं ना कहीं तो डेलीगेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ेगा कि बेसिकली कुछ गलतियां होंगी और मुझे उनको लेट गो करना पड़ेगा. जैसे कि राजीव तलरेजा हैं, इंडियाज नंबर 1 MSME कोच. वो हमेशा बोलते हैं परफेक्शन इज अ ट्रैप, सक्सेस इज ऑलवेज शैबी, राइट? सो आपको देखना है कि आप कितना शैबीनेस अलाउ करोगे, राइट? आपको ये नहीं देखना है कि आप कितना परफेक्ट काम अलाउ करोगे, आपको ये देखना है कि कितना शैबीनेस आप अलाउ करोगे. आउट ऑफ 100, इफ यू आर डूइंग 100%, राइट, that is quality for you. If your employee or your team is going to do it, will you be satisfied at 70%? Are you willing to take that on you, that 70% ये deliver करेंगे, बाकी 30% में मुझे inputs दे के इनसे गैप क्लोज कराना है, then actually you are doing business, right? Absolutely. ये तो एकदम फैक्ट है. अगर आप इस तरीके से बढ़ते हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप मल्टीपल्स बढ़ पाएंगे, राइट? इमेजिन समबडी गिविंग अ फ्रेंचाइजी ऑफ हिज ब्रांड, राइट? अब वो एज अ ओनर सारे फ्रेंचाइजीज में जाके रोज ये चेक नहीं कर सकता कि उसका सेल्समैन कितना बढ़िया बेच रहा है और कितना खराब बेच रहा है, या वो बताए मेरे पास फ्लैगशिप स्टोर है, आई विल टेल यू हाउ टू सेल, सो यू बी साइड, आई विल सेल. So he is standing at Mumbai counter, Bangalore counter, Pune counter, Jaipur counter and selling. ये हो नहीं सकता. वो हो नहीं सकता. And that is another way by which I think that my value also comes in.
And when I'm talking my value, which means entire training fraternity, right? That you train people so well that you get what you want them to do, right? दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए अगर कोई, समझिए स्पोर्ट्स का एग्जांपल लें, तो अगर कोई प्लेयर है जिसको ओलंपिक खेलना है, राइट, सो वो ओलंपिक, वो चाहे कितना भी अच्छा हो स्पोर्ट में, बिना एक कोच के वो ओलंपिक मेडल नहीं ला सकता है। दैट इज अ फैक्ट, क्योंकि आपको कोच चाहिए। सो मैं अपने व्यूअर्स से यही अपील करूंगा कि बेसिकली whether it is financial planning or whether it is growing in your business, go look for a mentor or a coach. जिन लोगों ने करा है उनसे जाके बात करिए, उनके एक्सपीरियंस से सीखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद की गलती करके सीखेंगे, दैट इज ओके, बट दैट इज अ वेरी 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 स्लो प्रोसेस एंड वी आर इन 2026, राइट? So you need to learn from people who have already done it. You need to learn from people who have been through those situations, क्योंकि वो आपको एक जंप स्टार्ट दे देंगे, वो आपको एक हेड स्टार्ट दे देंगे कि बेसिकली ये गलतियां मत करो, ये मैं करके देख चुका हूँ, Right. right? And don't fall in these traps. And if you want to get your business bigger, or you want to scale your business, if you want to do your wealth creation properly, these are the steps we need to look into, and you need to put effort and you need to be disciplined. ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं होने वाला है। सो कोई भी एक वीडियो या रील या कुछ देखकर आप ये समझ लो कि मैं आज इसमें इतना पैसा लगा देता हूँ और कल वो इतना इन्वेस्टमेंट, कल मेरा वो इतना ग्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। Right. अगर वो हो भी गया तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा, राइट? तो ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Very well. एक कन्हैया जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बेसिकली व्हाट डू यू वांट आवर व्यूअर्स टू टेक अवे फ्रॉम योर जर्नी? So I would suggest that resilience is something which I would like to tell to the audience as an entrepreneur also, right? So you must have watched multiple movies where the main character, the hero, the lead character, right, falls, right? But then that hero doesn't give up. He rises again, right? You must have seen certain action movies where the hero is being beaten brutally by the villains, right? But then after some time, he again gets up with full energy and wins the war, right? So that's what the important message for every entrepreneur is. My dear friends, the journey of being an entrepreneur is filled with lots of ups and downs, right? So on every up, celebrate to the fullest, and at every down, get up once again with good energy, good motivation, and you see that there will be a place, there will be a time where you will see yourself at the top, right? So resilience is something which I would like to give as my one concrete message to every entrepreneur. Never ever give up, right? And if you feel any downtrend in your trajectory of your business, right, always rise up again with again a good enthusiasm, good motivation. And in case you need any help from anyone who can give you a right guidance when you are at your down trajectory, right, don't feel shy. Reach the right person for placing the right systems which can take your business once again to great heights. So never give up, right? Be resilient. Beautiful. That's a beautiful message. So resilience, and don't shy out to reach out. Reach out to people, क्योंकि आप बात करोगे तो बात बनेगी। आप अपने दिमाग में ही कुछ सोचते रहोगे तो बात नहीं बनेगी। And reach out to the experts. Expert. Reach out to the Yeah. experts. Don't reach out to anybody and everybody. People do their Yeah. mistake. They reach out to their friends and family members who are not in that business, who are not there in that domain. They think that they will listen to me and they will give their advice. Yes, everybody, advice is free. Everybody is going to give you some advice. Somebody will say, okay, नहीं चल रहा है तो बंद कर दो. Somebody will say, चल अच्छा थोड़ी मेहनत कर, हो जाएगा कोई बात नहीं. Hmm. But
If you reach to the expert will diagnose the right root cause. So the root Exactly. causes will be diagnosed, and basis on that root cause, the appropriate solution will be given to you. Right? Please remember, my dear friends, that I will like you shall ask for one message. The second message, which is that always reach to the expert. Right? कोई भी चीज जिंदगी में कुछ भी करिए, always take the advice from the expert, not from everyone. And one last question, Kanaiya sir. Your journey has been from chaos to clarity, right? So, how do you define clarity today? Clarity, first of all, comes in my lifestyle, as in the life of a minimalist, right? Because if you are living in any uh, apartment or a flat or a house, whatever you want to say that, right? You'll see that when you have minimalistic furniture, things, belongings, then only your house seems very clear, very big, right? If you clutter your house with lot of stuff, you stuff your house with lot of things, your house will never look beautiful, right? It will always look cluttered. So now imagine this house as your brain. If you have cluttered your mind or your brain with lots of thoughts, lots of ideas, lots of things to do, a big to-do list, that will not give you the clarity. Clarity will come only by thinking from the minimalistic approach, right? One step at a time, right? That's how you could achieve the utmost clarity. And for anyone who wants to acquire success, you need ideas. Ideas are getting generated here. So to have the peace here, to have the clarity here, right? Give yourself a me time. Sit for some time when you are doing nothing and just maybe doing a meditation, maybe just sitting with your eyes closed and thinking, right? Maybe you are just sitting in your rooftop or balcony and listening to the quietness of this universe. So give some time to be thoughtless, to be with you, only you. And then the clarity will automatically start flowing in your life. Amazing. That's an amazing message for our viewers. Uh, Kanaiya sir, before we let you go, how can our viewers reach out to you? Yeah, so they can reach out to me on LinkedIn, on YouTube, on Instagram. As you mentioned, I'm majorly known in the market as Kanha, the life coach. So Kanha, Kanha, the life coach, right? You can reach to me at any of the descriptions over here related to Instagram, YouTube, LinkedIn, right? And feel free to reach out, because right now I wanted to help as many people as I can, and that too, since I'm passionate for it. To be very frank, I do not charge for this. Right? It is my passion to help people free of cost, and that's how I love to get connected with thousands and thousands of people. Superb, superb. So I will put all the links in the description of this episode. So basically, you can reach out to Kanaiya sir if you are looking for any financial freedom, wealth management kind of advice. And also, he's also a life coach. So if you're looking for any other advice related to your entrepreneur problems or any other problems, do reach out to him. Uh, Thank you so much, Kanaiya sir, for being here. It was an amazing conversation, and we really enjoyed talking to you. Thank you, Piyush, for holding me for this wonderful podcast. And it seemed that we were flowing with our wonderful free thoughts with you. You've been an amazing host. You've been an amazing question putter, and it was so very smooth interacting with you, that as if we know each other from years. Though we are interacting for the first time, but then wonderful connecting with you, Piyush. Thank you very much for inviting me for your podcast. Thank you. So, this was this week's episode. You were listening to Chaos to Clarity. I am your host, Piyush Thakkar, and I will see you next week with another one.
थैंक यू सो मच।